New batch, old batch, June and September batch. So let's start with our topic for today, that is ship reporting system and VTS. So sharing the screen with you now. Minute. So it's sort of a revision for you, because this is what we have done during our second mate's time also. So everyone, screen visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Good. So use of reporting in accordance with the general principles of ship reporting system and VTS procedures. So ship reporting, ये मॉडल कोर्स है IMO का, उसमें बेस्ड है ये. क्वेश्चन जो आपका आता है कि शिप रिपोर्टिंग सिस्टम है क्या, हाउ दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड सेफ्टी. शिप रिपोर्टिंग सिस्टम्स, VTS and what you call ships routing system. तो रिपोर्टिंग सिस्टम, रूटिंग सिस्टम एंड VTS, इन तीनों की एक कॉमन थीम है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है. दैट इज सेफ्टी of life at sea, safety and efficiency of navigation, and protection of the marine environment. ये तीनों के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है या थीम है इनकी. Now, ship reporting system shall be used by all ships carrying certain types of cargoes in accordance with the IMO provisions. Initiation मतलब कौन करेगा? That is the responsibility of the contracting government. मतलब the country or the government which has signed the protocol, इसको जो contracting government जो signatory है to the convention, उनकी responsibility है to implement it on their ships. And master has to comply with the requirements. Okay, once the flag state has signed it that you have to do it, that you have to comply with it. Master की responsibility है. Now, what are the general principles? ये एक question आता है आपका. What are the general principles and procedures of the ship reporting system? So, requirements, इसकी जो जरूरत है, purpose क्या है इसका? Is to gather and exchange information through radio reports. And the information which you are sharing, the information which you are sending, radio reports, then this information is used to provide data for search and rescue, for VTS purposes, weather forecasting, and prevention of pollution. Okay, so this is the purpose for that. Principles क्या है? ये 6 principles हैं आपके. That it should contain only the information which is requested. In other words, इसका एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है, उसी को यूज करना है. Reports should be kept to a minimum. Safety and pollution reports are to be sent without delay. There is no cost for making these reports. And language में जहाँ problem होता है, then English is to be used together with the standard marine navigational vocabulary जो आपके पास जहाज में एक कॉपी रहती है. So these are the 6 salient features or reporting principles. ये इसका purpose है, क्यों हमें रिपोर्ट भेजनी है? To provide data to VTS, weather forecasting, search and rescue, marine pollution के लिए. So when you are sending reports, these reports are collected, gathered, analyzed, exchanged between one to another station, and purpose ये है. और ये जो सारा purpose है ना, search and rescue, VTS, weather forecast, ये आप ही के फायदे के लिए है. You might require search and rescue services. You may require weather information forecasting. So it's just to provide, it's for them also and moreover for you. You want to know everything also. तो ये आपका procedure है, principles. ठीक है, 6 points है ये. Now, procedure for reporting. So what are the general principles and the procedure? और ये procedure आप भेजते हैं आप
You remember, you recall that when you are sailing, आप एक sailing report बनाते हैं, ठीक है, prior to departure. उसका एक particular format होता है, content होता है. Name of the ship, call sign, MMSI number, then port of departure, port of arrival, date, approximate time of departure, the tentative ETA, speed, waypoints, ये सब आप डालते हैं वो sailing plan में. Then position report. Every noon you are making a position report, noon report जिसको बोलते हैं, वो आप भेजते हो. Then deviation report होती है. In case you have deviated from your planned route, change of destination हो गया, कोई typhoon आ गया, cyclone आ गया, आपने route बदल दिया अपना, or when your current position is significantly different from that would have been predicted from previous reports. जैसे आपने देखा है आज मेरी पोजीशन ये है, कल को नून को मैं यहां पे होऊंगा, वो प्रेडिक्टेड है. और आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है, इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जो प्रेडिक्टेड पोजीशन है. सो तब आपने डेविएशन रिपोर्ट भेज दी, या चेंज ऑफ रूट हुआ है, या चेंज ऑफ डेस्टिनेशन हुआ है. सो यू मेक दिस डेविएशन रिपोर्ट, एंड वंस यू अराइव्ड एट द पोर्ट, तो आप फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं. और व्हेन लीविंग एन एरिया, कि हम इस एरिया को छोड़ के जा रहे हैं, जैसे पहली वाली जो रिपोर्ट है, सेलिंग प्लान आप तब बनाते हैं बिफोर डिपार्चर, और व्हेन एंटरिंग एन एरिया. फाइनल रिपोर्ट ऑन अराइवल और व्हेन लीविंग एन एरिया. सो ये 4 रिपोर्ट आप भेजते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव 3 more रिपोर्ट्स. दैट इज द डेंजरस गुड्स रिपोर्ट. ये तब भेजते हैं when any incident takes place involving the loss of packages of dangerous goods into the sea. मतलब dangerous goods in packaged form. अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि some of your packages, dangerous goods के have been lost overboard, so then you make this report. Only when any incident takes place involving the loss of packages of dangerous goods into the sea. Harmful substance report, ये तब करेंगे आप when incident takes place involving the discharge or probable discharge of oil. This is your harmful substances report. And ये जो रिपोर्ट है आपकी dangerous reports, harmful या chemical report जो है, ये आप immediately भेजेंगे. So safety and pollution की जो reports है, they have to be sent without delay. So harmful substances, whenever incident takes place involving the discharge or probable discharge of oil, harmful substance. And फिर आपकी marine pollutant report है. When an incident takes place involving the discharge or probable discharge of harmful substances in packaged form. अब harmful substances यहाँ पे क्या बताया उसने? Oil. That is your harmful substance. And वो कह रहा है harmful substances in packaged form. In other words, drums है या canisters है. So ये marine pollutant report है. So ये 3 reports आप भेजेंगे whenever कोई incident होता है. And without delay, you will not wait for the next day. This has to be sent without delay. So this is a type of questions which can be expected. Basic principles क्या है, ship reporting system क्या है, उसके contents क्या है, report के contents मैंने बताया आपको, sailing report, position report, deviation report, final report, और वो आपके जो marine pollutant वगैरह reports है. Procedure वही है आपका reports का, कैसे भेजेंगे, sailing plan भेजते हैं. So clear up to here? Yes, sir. Okay, ji. Now VTS, very common question. What is a VTS? So यहाँ से जो मैंने
हाईलाइट करो, ये आपका आंसर है। प्लीज नोट्स आपको भेजूंगा मैं, इनफैक्ट आज ही भेज देंगे। जुलाई बैच के पास ऑलरेडी है ना नोट्स, जुलाई बैच? Yes, sir. Yes. So July batch has already got it. September batch, I will send it to you today. So please use the notes only. इधर उधर से मत यूज कीजिए. Do not use blogs. Okay, so what is VTS? और क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से, इस टॉपिक में से, शिप रिपोर्टिंग सिस्टम्स में से. So it's a service which is implemented by a competent authority. That is your DG Shipping, for example, in India. Designed to improve the safety and efficiency of navigation vessel traffic, to protect the marine environment, and the service should have the capability to interact with the traffic. That means VHF communication hona chahiye so that they can interact with the traffic, and to respond to traffic situation developing in the VTS area. So जो भी ट्रैफिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, लेट्स से कोई VLCC आ रहा है या कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है उन VTS एरियाज में, तो दे विल कीप इन्फॉर्मिंग यू क्या सिचुएशन डेवलप कर रही है. सम शिप हैज रन अग्राउंड और शिप्स हैव कोलाइडेड और वन VLCC इज कमिंग लोडेड, यू नो, ऑल दैट इंफॉर्मेशन. सो ये VTS है. So what is a VTS? A service which is implemented by a competent authority. Or purpose क्या? Designed to improve the efficiency of vessel traffic and to protect the environment. The service should have the capability to interact with the traffic and respond to traffic situation developing in that area. Purpose, the main purpose and auxiliary purpose. ये भी क्वेश्चन आता है आपका. What is the main purpose and auxiliary? ये जो टॉपिक है ना, शिप रिपोर्टिंग एंड VTS, इस पर सारे के सारे क्वेश्चंस ही है. So now what is the main and auxiliary purpose? So ये main purpose है to improve the safety and efficiency of navigation of life at sea, protection of the marine environment, adjacent sources, etc., and safety and efficiency of navigation. मैंने जैसे आपसे कहा था, कॉमन थीम है VTS की, शिप रिपोर्टिंग सिस्टम, शिप्स रूटिंग सिस्टम, safety and efficiency of navigation, safety of life at sea, and protection of the marine environment. ये main purpose. Then coordinate response to pollution. VTS का काम है, अगर कोई pollution हो रहा है तो उसको coordinate करेगा. Port and harbor surveillance. Then monitoring of navigational marks. So ये main purpose है. Auxiliary purpose: search and rescue within that area, facilitate easy access to medical help, and facilitate dredging and offshore operation. ये secondary purpose है उसका. ठीक है. So what is the main and auxiliary purpose? This is the answer. Next comes VTS. Now एक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा types of VTS, और ये है parts and resources of VTS. ये जो दो क्वेश्चन है ना, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है आंसर्स में. पार्ट्स एंड रिसोर्सेस अलग चीज है, टाइप्स ऑफ VTS अलग चीज है. अक्सर पार्ट्स और रिसोर्सेस पूछता है तो कुछ लोग ये लिख देते हैं, या ये पूछा गया है क्वेश्चन में तो पार्ट्स एंड रिसोर्सेस लिख देते हैं. सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन. टाइप्स ऑफ VTS दो टाइप के होते हैं, एक कोस्टल होता है, एक हार्बर होता है. ना कोस्टल वाला मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दे दूंगा, is one which is mainly responsible or concerned regarding the vessel traffic passing through that area. Let's say आप हांगकांग जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, सॉरी हांगकांग जा रहे हैं. You are passing through Malacca Strait. You are not going to any port in Malacca, Malaysia में. You are passing through Singapore Straits, east, central, west, सब कुछ. You are not going to Singapore, but you are passing through that area.
So they are keeping a watch on you. So they are mainly concerned with vessel traffic passing through that area, and they render information service only, जिसको हम कहते हैं VTIS. So when you are entering an area, आप रिपोर्ट करते हो. वैसे सारी इंफॉर्मेशन वो आपके AIS से ले लेते हैं, बट फिर भी दे कॉल यू, और रादर यू कॉल देम, दैट यू आर एंटरिंग दैट एरिया. अपने जहाज का नाम, कॉल साइन, MMSI नंबर, सब कुछ डिटेल्स बताएंगे, लेग पोर्ट, लास्ट पोर्ट, और ETA, कार्गो, क्रू ऑन बोर्ड, डेंजरस गुड्स ऑन बोर्ड, सारी जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं आप देते हैं उनको. एंड देन दे कीपिंग अ वॉच ऑन यू, आपको ट्रैक करते रहते हैं. जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो अगेन यू आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एरिया. सो दे आर ट्रैकिंग योर वेसल थ्रू दैट एरिया. यू आर पासिंग थ्रू दैट. इंग्लिश चैनल है, डोवर स्ट्रेट है. यू आर नॉट गोइंग टू एनी कंट्री देयर, यू आर गोइंग टू फिनलैंड, बट दे आर मॉनिटरिंग यू. And if you're doing something wrong, they will warn you that you are crossing, गलत कर रहे हैं आप, you are running into danger or whatever. If you want information, weather information, they will provide you. Tidal information, navigational warning, navtex warning, सब आपको provide करेंगे. So in other words, they are providing you information only. वो लोग broadcast भी करते रहते हैं, weather report for example, लेकिन आपने मिस कर दी, आप उनको पूछो तो वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे. कोई अगर मैन ओवरबोर्ड हुआ है तो दे असिस्ट यू, कोई पोल्यूशन हुआ है दे विल असिस्ट यू, क्योंकि ये क्या है, उनका ऑक्सिलरी पर्पस है. हमने अभी किया ना, ऑक्सिलरी पर्पस क्या है इनका, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल हेल्प चाहिए, सो दे प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो. सो बेसिकली इंफॉर्मेशन सर्विस है आपका पोर्ट एंड हार्बर VTS, mainly concerned with traffic to and from the port. So ये लोग क्या करते हैं, जब आप किसी पोर्ट में एंटर करते हो तो एक पोर्ट एरिया होता है, पोर्ट लिमिट्स. आप इनको अपना ETA भेजते हो. Then they will tell you कि when you pass the fairway boy, call us. They will tell you where to drop anchor or what time pilot will board, which side pilot ladder, what pilot seat, which berth you are going to, which tug coming, right? ये decide करते हैं. That means what they are doing is management or movement of ships within the port area. कौन से जहाज को पहले निकालना है बाहर, कौन सा पायलट कौन से जहाज में जाएगा, कौन सी टग कौन से शिप में जाएगी. VLCC है उसको बड़ी टग चाहिए, छोटा जहाज है उसको छोटी टग चाहिए. VLCC है तो एक्सपीरियंस पायलट भेजना है टैंकर का, कोई दूसरा बल्क कैरियर है तो अलग भेजना है, पैसेंजर शिप आ रही है तो अलग पायलट भेजना है. What they are doing is managing of the movement of vessels in and out of the port. ठीक है. They'll provide you navigational warning, weather warnings, tidal information, medical help, कोई pollution हुआ है वो भी करेंगे, ये सब करेंगे. But basically they are monitoring and managing the movement of ships in and out of the port. कौन सा जहाज कौन सी बर्थ में जाएगा, ये सब वो मैनेज करते हैं. इनफैक्ट एजेंट जब आता है जहाज पर, या कोई बंकर बाज आ रही, या सप्लाईज आ रही है, या पानी आ रहा है, या फ्यूल सप्लाईज हो रही है, वो भी इनसे पूछ के हुए आते हैं. पोर्ट को बताते हैं दैट आई विल बी गोइंग टू सो एंड सो शिप टू सप्लाई फ्यूल ऑयल या फ्रेश वाटर या प्रोविजंस, या एजेंट है. आप अगर लॉन्च सर्विस है आपकी, शोर लीव के लिए लॉन्च सर्विस अरेंज करेगी तो वो भी इनसे पूछ के होती है. इनको लिस्ट भेजी, टाइमिंग दी जाती है. सो दे आर फुली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद इन दैट पोर्ट. वैसे जब आप सेल आउट करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कब आप सेल आउट करोगे, कौन सा पायलट आएगा, कौन सी टग आएगी या नहीं आएगी. एंड व्हेन यू पास, वो आपसे कहते हैं व्हेन यू पास द फेयरवे बॉय प्लीज गिव अस अ कॉल. तो जब आप आउटबाउंड हैं, फेयरवे बॉय क्रॉस कर रहे हैं, तो यू गिव देम अ कॉल एंड देन दे से ओके बाय बाय बॉन वॉयज. दैट मीन्स नाउ यू आर आउट ऑफ द हार्बर और पोर्ट VTS, और अब वहां पे अगर कोई कोस्टल VTS है उसको रिपोर्ट करो.
So this is your port VTS. So don't confuse between types of VTS and parts of VTS. So ये VTS के 4 पार्ट्स है. एरिया सर्वेलेंस करना इनका काम है. सो लेट्स से पोर्ट VTS है, वो सर्वेलेंस करते हैं, नजर रखते हैं उस एरिया में क्या एक्टिविटी चल रही है, और सर्वेलेंस के लिए उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, वो रिसोर्सेस हो गए कि इनको एरिया सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी करना. उस सब के लिए इनके पास रिसोर्सेस क्या है. सो पार्ट्स एंड रिसोर्सेस. फिर TSS है, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम. ऑब्वियसली TSS है तो बॉयज सिस्टम होना जरूरी है, तो वो रिसोर्सेस हो जाता है. मूवमेंट रिपोर्टिंग स्कीम एंड वेसल ट्रैफिक सेंटर. सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द VTS. और अब ये इनके रिसोर्सेस है कि सर्वेलेंस के लिए उनके पास क्या क्या है. रेडार है, सैटेलाइट्स है, GPS ट्रांसपोर्टर्स है, वेदर सेंसर्स है, क्लोज सर्किट टीवी दैट इज CCTVs है, पेट्रोल बोट्स है, एंड लो रेंज एयरक्राफ्ट्स. मतलब फॉरेन पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट होता है वो घूमते रहता है. इंडियन पोर्ट्स में भी होते हैं, कभी कभी ये एयरक्राफ्ट होते हैं, पेट्रोल बोट्स घूमते रहती हैं, जस्ट टू मॉनिटर दैट एरिया कि वहां कोई इलीगल एक्टिविटी ना चल रही हो. TSS के लिए सेपरेशन स्कीम्स है, सेपरेशन जोन्स है, बॉयज सिस्टम है, कोस्टल इंश्योर, ये सब है उनके पास TSS के लिए. देन मूवमेंट रिपोर्टिंग स्कीम, रेडार्स हैं, पेट्रोल बोट्स है, VHF, सैटेलाइट्स. कभी कभी आपसे भी पूछते हैं अगर उनको नहीं मिल रहा है कि भाई आपके पोर्ट साइड में, स्टारबोर्ड साइड में कहीं पे एक जहाज है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसका AIS ऑफ है, रेडार में तो दिख रहा है, तो प्लीज इफ यू कुड टेल अस द नेम ऑफ दैट शिप, उसका IMO नंबर अगर आप बता सकते हो. समटाइम्स दे आस्क यू आल्सो. एंड VTC है तुम्हारा कंट्रोल टावर, जैसे ATC होता है, एट का ट्रैफिक कंट्रोल, तो वैसे टावर होता है, टावर पर बैठ करके ये लोग देखते हैं. विजुअल साइटिंग्स होती है, वहां भी रेडार्स, कंप्यूटर्स, माइक्रोवेव लिंक्स, लाइट वेसल्स, ये सब उनके पास वहां से हैं, सो दैट दे कैन सी एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग विद इन दैट एरिया. कौन जहां जा रहा है, सो उस हाइट से बैठ के उनको सब दिखता है. सो दीज आर द पार्ट्स एंड रिसोर्सेस. देन मास्टर्स ऑब्लिगेशन मैंडेटरी है. सो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, व्हाट आर द मास्टर्स ऑब्लिगेशन व्हेन एंटरिंग अ प्रायोरिटी VTS एरिया. सो प्रायर टू एंट्री, vessel should make the required reports including deficiencies. Now this is very very important कि आप deficiencies बताइए, so that they are aware, VTS is aware कि इस जहाज में ये problem है, and they can warn the other ships. If you do not, then it is a crime. अगर आप पोर्ट में एंट्री कर रहे हैं और पोर्ट में एंट्री कर रहे हैं आप, और आपका एक ही रेडार काम कर रहा है, तो बता दीजिए. There is no harm in telling that you have only one radar. क्या करेंगे वो, ज्यादा से ज्यादा एक आपका एक्स्ट्रा बोट लगा देंगे, टग बोट. टग बोट बाहर है तो टग बोट अंदर है तो टग बोट बाहर भेज देंगे, सो दैट आपके जहाज को सपोर्ट मिल सके. स्टीयरिंग खराब है, होता है, बट यू आर नॉट सपोज टू हाइड, दैट विल बी अ क्राइम. कुछ हो गया तो. सो इन केस एनीथिंग इज नॉट वर्किंग, जस्ट इन्फॉर्म देम सो दैट दे कैन एक्टिवेट देयर कंटिजेंसी प्लान. जो भी उनका कंटिजेंसी प्लान होगा कि इस जहाज में स्टीयरिंग नहीं है, ओके, एक ही स्टीयरिंग है तो एक टग को बाहर भेज दो. बट अगर आप छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, कुछ हो जाएगा, then you can be in big trouble. तो चाहे वो हार्बर VTS हो, पोर्ट VTS हो या कोस्टल VTS हो, उनको बताइए आप.
Then during the passage, when you are in that area, you have to keep a listening watch on the channel. जो भी चैनल है एक एरिया में है, और जो सेलिंग प्लान आपका है उसको स्टिक करिए. मास्टर शुड रिपोर्ट एनी डेंजर्स टू नेविगेशन, पोल्यूशन वगैरह. ये तो पता ही है आपको कि मास्टर की ऑब्लिगेशन है. कोई भी डेरिलिक्ट मिलता है, आइसबर्ग मिलता है, कोई डेंजर टू नेविगेशन मिलता है, कोई पोल्यूशन दिखता है आपको आउट एट सी, यू आर सपोज टू रिपोर्ट इट. ये ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू रिपोर्ट. किसी वजह से अगर कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है आपका, यू आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट, ट्राई टू कॉन्टैक्ट वीटीएस बाय ऑल मीन्स. एक नहीं है तो दूसरा नहीं तो जो भी तरीका है, ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम. नहीं कर पा रहे हैं तो बगल में अगर कोई शिप है उसको बोलिए कि मेरी ये इंफॉर्मेशन वीटीएस को पास कर दो. कोई भी नहीं है, यू आर नॉट एबल टू, किसी भी तरीके से आप उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो देन मेक एन एंट्री इन द ऑफिशियल लॉग बुक as to why you are not able to contact them despite all your efforts. ये जरूरी है. So if the vessel is unable to continue participating for whatever reason, master should make an entry in the logbook and the reasons. ये भी आपका एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. Advantages. And just 1 minute, I'll be back. Just 1 minute. हाँ, so एक क्वेश्चन आपका ये आता है which is quite common again. What are the advantages and disadvantages of VTS? So advantages ये हैं आपके, permits identification and monitoring of vessels by VTS. Vessels movement can be planned and navigational information assistance provided. मतलब पोर्ट वीटीएस कैन प्लान किस जहाज को अंदर लाना है, बाहर निकालना है, कौन किसको लाना है, कौन पायलट, कौन टग्स, etc. And for that, assistance can be provided by providing pilots, tugs, etc. Pollution prevention and coordination in case of pollution. Collision avoidance के लिए शोर में बैठते हैं वो लोग आपको बता सकते हैं कि that you are running into a danger, you are running into a collision course, or you are running into you might run aground if you don't alter your course, ऐसा कुछ. More confidence still in the navigator means रात का टाइम है, आप you are passing through that area, वहाँ पर ट्रैफिक है, आप अकेले हो ब्रिज में, तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती कि चलो मैं अगर कुछ गलती हो रही होगी तो वीटीएस वाले बैठ के वहां देख रहे हैं, वो मुझे वार्न कर देंगे. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस which will lead to increased turnover of ships.
मतलब सिंगापुर और यूरोप में आप देखेंगे बर्थ, खासकर सिंगापुर में बर्थ खाली नहीं रहती है। एक पोर्ट जहाज निकला, उस बर्थ पे दूसरा आ गया, दूसरा निकला, तीसरा आ गया। तो उससे क्या होता है, इनफैक्ट आप अलॉन्ग साइड कंटेनर शिप्स में खासकर आप अलॉन्ग साइड पहुंचते नहीं है, कार्गो डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर स्टेशन, गैंगवे डाउन हो गया, लेबर आ गई जहाज पे, कंटेनर खोलने शुरू कर दिया उन्होंने। सो उससे क्या होता है कि जो काम 10 घंटे में होना होता है वो 5 घंटे में हो जाता है और आपको सेल आउट कर देते हैं, दूसरा जहाज आ जाता है। सो मोर शिप्स आर बर्थड इन अ पर्टिकुलर डे, तो टर्नओवर ज्यादा हो जाता है। टर्नओवर ज्यादा होगा तो कमाई ज्यादा होगी। रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ नेविगेशनल मॉर्निंग, दे हैव इंफॉर्मेशन, आप कभी भी ले सकते हैं उनसे। बेटर मॉनिटरिंग असिस्टेंस टू डिसेबल्ड शिप, अगर आपकी स्टीयरिंग खराब है, ये खराब है, डिसेबल्ड हो किसी वजह से, तो आपको अच्छा मॉनिटरिंग मिल सकती है। ये उसके एडवांटेजेस है। Now there are certain limitations also. Limitations means disadvantages. First of all, उसका जो साइज है, ठीक है, effectiveness depends on the size and extent of service, training and experience of the operators. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग कैसी है, एक्सपीरियंस कैसा है ऑपरेटर का। देन ऑपरेटर की शॉर्ट कमिंग्स, मोस्ट ऑफ दीज पीपल जो ऑपरेटर्स बैठे हैं वहां पे, खासकर फार ईस्ट में देखेंगे, या फार ईस्ट जापान तो नहीं कहूँगा, बट सिंगापुर इस साइड में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, दे विल नॉट गिव यू सफिशिएंट वार्निंग इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक। क्यों नहीं देते? बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड शिप हैंडलिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड सीमैनशिप, कॉल रिग्स उनको नहीं मालूम है, स्क्वाड वगैरह के बारे में नहीं मालूम है। Why? Because they are mostly just VHF operators without any sea experience. तो इसलिए वो आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ द फियर। उनको डर होता है कि अगर उन्होंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिए, पोर्ट जाओ, स्टारबोर्ड जाओ, कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कुछ गड़बड़ हो गई तो उनकी लायबिलिटी बनेगी। सो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लायबिलिटी दे आर रिलक्टेड टू गिव यू इंस्ट्रक्शंस, कि कहीं कुछ हो गया तो उनका नाम आ जाएगा। सो ये ऑपरेटर शॉर्टकमिंग्स बहुत जरूरी। नाउ इफ यू गो टू यूरोप, मैंने देखा, बहुत पहले की बात है, आज से समझो 18-20 साल पहले की बात है, एब्सोल्युटली जीरो विजिबिलिटी, एंड आई वाज एंटरिंग हैम्बर्ग रिवर एल्ब। बाहर से ही उन्होंने मुझे गाइडेंस देनी शुरू कर दी। अरे यार सर, मैं स्क्रीन मेरा फिर हैंग हो गया है, सो आई विल जस्ट रीस्टार्ट इट एंड कम बैक टू इन 2 मिनट्स। ये एक प्रॉब्लम है मेरे लैपटॉप की। चलिए मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। Okay, sir.